سب سے پہلے آپ کو بتائیں فیصل آباد سٹیانہ روڈ اور جمرہ روڈ کے مکینوں کے لیے بڑی خبر۔ جال پل سے سلیمی چوک تک فلائی اوور کی پرپوزل تیار۔ عبداللہ پور پل سے جمرہ روڈ تک بھی فلائی اوور کی سفارش بھی تیار کر لی گئی۔ ایف ڈی اے نے منصوبے کی منظوری کے لیے سمری حکومت پنجاب کو بھجوا دی۔ عبداللہ پور پل سے جمرہ روڈ اور جال چوک پل سے سلیمی چوک تک فلائی اوور پر 3 ارب 30 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ آپ کو بتائیں ستیانہ روڈ اور جمرہ روڈ کے مکینوں کے لیے بڑی خبر۔ جال پل سے سلیمی چوک تک فلائی اوور کی پرپوزل تیار۔ عبداللہ پور پل سے جمرہ روڈ تک بھی فلائی اوور کی سفارش تیار کر لی گئی۔ ایف ڈی اے نے منصوبوں کی منظوری کے لیے سمری حکومت پنجاب کو بھجوا دی۔ عبداللہ پور پل سے جمرہ روڈ اور جال چوک پل سے سلیمی چوک تک فلائی اوور پر 3 ارب 30 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایف ڈی اے کی جانب سے شہر کی تعمیر و ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 بڑے منصوبے جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پیپر ورک کیا گیا ہے اور حکومت پنجاب کو ان کی سفارشات جو ہیں بھجوا دی گئی ہیں، جن میں ستیانہ روڈ کی ٹریفک کو مینج کرنے کے لیے جو ہے وہ جھال پل سے لے کر سلیمی چوک تک کے لیے جو ہے وہ ایک فلائی اوور تجویز کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت چیف انجینئر ایف ڈی اے موجود ہیں، ان سے سے بات بھی کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ چیف سے بھی بتائیے گا جو ستیانہ روڈ کی ٹریفک ہے اس کے لیے کیا پلاننگ جو ہے ابھی تک کی گئی ہے؟ اس میں اس طرح ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ ستیانہ روڈ پہ جاتے ہیں تو جو پیچ جی ٹی ایس برج سے لے کے سلیمی چوک تک ہے وہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک بلاک ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جس طرح پچھلے اتوار میں ایک جی ٹی ایس برج سے لیگ اتاری گئی تھی رائٹ سائڈ کو سمندری روڈ کو، اسی طرح ہی ہم اسی لیگ سے اسٹریٹ سلیمی چوک کراس کر کے ایک لیگ اتاریں گے جس سے جانے والی ٹریفک جو ہے اس کو استعمال کر سکے گی۔ تو اس سے یہ ہے کہ وہ سنگل پیئر برج ہوگا، کوئی لینڈ ایکوزیشن ایسا اس میں نہیں ہوئے گی، جو درمیان میں گرین بیلٹ ہے اس کے اوپر ہی پیئرز ہوئیں گے۔ تو اس کی ہم نے اسٹڈی کی ہے اور ابھی گورنمنٹ آف پنجاب نے ہم سے نیکسٹ ایئر اے ڈی پی مانگی ہے کہ جو بھی آپ پروجیکٹس وغیرہ بہتر سمجھتے ہیں وہ بتائیں۔ تو اس کی اراؤنڈ 1 ارب اور 80 کروڑ کے قریب اس کی کاسٹ ہے، تو یہ بھی ہم نے بنا کر گورنمنٹ آف پنجاب کو بھیجی ہے۔ دوسرا منصوبہ جو ہے وہ بڑا، وہ بھی اسی نوعیت کا ہے کہ عبداللہ پور سے جمرہ روڈ کی ٹریفک جو ہے ڈائیورٹ ہو سکے گی، اس کے لیے کیا پلاننگ جو ہے کی جائے؟ اس میں اس طرح ہے کہ آپ جب بھی عبداللہ پور سے جڑاں والا روڈ کی طرف جاتے ہیں تو وہ تو آپ اسٹریٹ چلے جاتے ہیں، لیکن جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے عبداللہ پور سے جمرہ روڈ ٹرن کرنا ہے تو آپ آگے سے یو ٹرن لیتے ہیں، جس سے ٹریفک کافی بلاک ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ہم اسی برج سے جو کہ عبداللہ پور سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک لیگ اتاریں گے لیفٹ سائڈ کو جمرہ روڈ پہ، کہ جمرہ روڈ پہ ٹریفک کو آگے جا کے یو ٹرن نہ کرنا پڑے اور وہ سٹریٹ لیفٹ سائڈ پہ اتر جائے۔ اس کی کاسٹ اراؤنڈ 1 ارب 50 کروڑ کے قریب ہے۔ تو یہ بھی ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب کو بھیجا ہے کہ اگلی اپنی اے ڈی پی میں شامل کریں، جب بجٹ اناؤنس ہوئے گا تو اس میں پھر یہ شامل ہوئے گی انشاءاللہ۔ کس حد تک وہ توقع رکھتے ہیں آپ کہ یہ 2 اہم منصوبے جو ہیں وہ حکومت دیکھ سکتی ہے، کیونکہ فیصل آباد کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں، ابھی ہماری اس میں انٹرنل ان ہاؤس میٹنگز بھی ہوئی ہیں جس میں ڈی جی ایف ٹی اے اور چیئرمین ایف ٹی اے کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے۔ چیئرمین ایف ٹی اے کی اس معاملے میں سی ایم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ 2 پروجیکٹس جو ہیں فیصل آباد کے لیے اس اے ڈی بی میں لازمی شامل کیے جائیں گے۔ بالکل، اگر یہ دونوں منصوبوں کے اوپر حکومت پنجاب جو ہے وہ حتمی فیصلہ دیتی ہے اور ان کی منظوری ہوتی ہے تو اس سے رمضان مرزا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں سی ایم پیکج کے تحت فیصل آباد ڈائیور روڈ سے ملحقہ سڑک کی تعمیر و مرمت ہوگی۔ مسجد اسماعیل روڈ تا پل مقبول تک سڑک کے لیے 15 کروڑ 59 لاکھ کی منظوری۔ جون تک کام مکمل ہوگا۔ پی این ڈی کا نوٹیفیکیشن جاری، سیکرٹری سی این ڈبلیو اور محکمہ خزانہ کو مراسلہ جاری۔ سی ایم پیکج کے تحت فیصل آباد ڈرائیور روڈ سے ملحقہ سڑک کی تعمیر و مرمت ہوگی۔ مسجد اسماعیل روڈ تا پل مقبول تک سڑک کے لیے 15 کروڑ 59 لاکھ کی منظوری۔ جون تک کام مکمل ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران، بتائیے گا۔ جی بالکل، سی ایم پیکج کے تحت فیصل آباد میں جو ہے وہ ڈیور روڈ سے ملحقہ سڑکوں کی تعمیر و نو کی منظوری دی جا چکی ہے۔ فیصل آباد میں مسجد اسماعیل روڈ سے جو پل مقبول روڈ ڈیور روڈ کی تعمیر کے لیے 15 کروڑ 59 لاکھ کی منظوری دی جا چکی ہے۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے سڑک کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے ایس سی محکمہ ہائی وے، سیکٹری سی این ڈبلیو اور سیکٹری فنانس ڈپارٹمنٹ کو بھی مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ہائی وے فیصل آباد یہ منصوبہ جون 2022 تک مکمل کرے گا، اور یہ منصوبہ 2021 اور 22 کی اے ڈی بی اسکیم میں شامل تھا، اور سی ایم پیکج کے تحت یہ ملحقہ ڈیور روڈ سے جتنی بھی ملحقہ سڑکیں تھیں ان میں سے مسجد اسماعیل روڈ تا پل مقبول تک ڈیور روڈ کی تعمیر و مرمت کے لیے ہے وہ پی این ڈی نے 15 کروڑ 59 لاکھ کی منظوری دی جا چکی ہے۔ سڑک کی جو سنگل وے کیریج میں جو ہے 4.3 کلومیٹر تک لمبائی میں جو ہے وہ تعمیر و مرمت محکمہ ہائی وے
जून 2022 तक मुकम्मल करेगा। सेक्रेटरी CNW और फिनांस डिपार्टमेंट को भी मरासला जारी कर दिया गया है। ऐसी महकमा हाईवे फैसलाबाद ये मनसूबा जो है वो जून 2022 तक मुकम्मल करेगा। ये फैसलाबाद में तमाम सड़कें जो है CM पैकेज के तहत जो है वो मंजूरी दी जा रही है। अभी जो डेवर रोड की मंजूरी 15 करोड़ 59 लाख की मंजूरी दी जा चुकी है। महकमा हाईवे इस सड़क को 15 करोड़ की जायद से लागत से मुकम्मल करेगा। जी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट में शुगर सेस फंड की मद में पड़ा 50 करोड़ का फंड इस्तेमाल करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर ने 17 स्कीमों में तरमीम जबकि 12 नई स्कीमों की मंजूरी दे दी। सड़कों की मुरम्मत का काम जल्द शुरू होगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ जवेद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट शुगर सेस कमेटी का इजलास मुनक़्क़द हुआ है, जिसमें शुगर सेस के जो फंड्स हैं उनके यूटिलाइजेशन के हवाले से फैसले किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस वक्त ज़िला के पास शुगर सेस की फ़ंड में कितने फ़ंड पड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ अब नई स्कीमें शुरू की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर सेस जो डेवलपमेंट फ़ंड होता है उसमें हमारे पास तकरीबन जो है वो 500 मिलियन के करीब तीनों शुगर मिल्स के पैसे पड़े हुए थे। उसमें से तकरीबन हमारी 17 स्कीम्स पहले से अप्रूव थी, लेकिन उनकी रिवाइज्ड अप्रूवल होनी है, उसको भी आज हमने अप्रूव किया है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स को। और उसके अलावा 12 नई स्कीमें जो है ना वो हमने दी हैं। उनके अंदर जो है वो हमारे बाईपासिस हैं, चक जुमरा रोड है, इसी तरह से रमज़ान शुगर मिल की और सफ़ीना शुगर मिल की और भी जो है ना वो रोड्स मौजूद हैं। और इस तरह से ये 29 टोटल स्कीम्स बनती हैं, जिनकी एक्यूमुलेटिव कॉस्ट जो है वो 560 मिलियन के करीब है। और इंशाल्लाह इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट को चैलेंजेस हैं रोड्स के हवाले से वो काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। और हम सब की मुशावरत से हमने जो हमारे पास कुछ सेविंग पड़ी हुई थी उसकी सेविंग से हम चिन्योट जो फैसलाबाद रोड है उसकी भी जो है ना मुरम्मत का काम करवाएंगे। वो तकरीबन 53 मिलियन की स्कीम बन रही है, लेकिन इंशाल्लाह उसके ऊपर जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा, ताकि जो ग्रोअर्स यहाँ से गुजरते हैं, जो लोग यहाँ से गुजरते हैं फैसलाबाद से चिन्योट की तरफ आते हैं, इंशाल्लाह उनके लिए आसानी पैदा होगी। हाँ जी, बिल्कुल। चिन्योट में वाक़या तीनों शुगर मिल्स के जो फंड्स पड़े हुए थे उनको अब इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। पहले 17 जो स्कीमें थी उनको भी रिवाइज किया गया है, जबकि 12 नई स्कीमें। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जमाना बदला, जिद्दत का नया दौर आया, मगर रेलवे के हालात ना बदले। फैसलाबाद स्टेशन के 100 से जायद फाटकों पर अमला जदीद सहूलियात से महरूम। फाटकों पर गेटमैन को फराहम किया गया टेलीफोन और दीगर सामान नाकारा हो गया। नाकारा कम्युनिकेशन सिस्टम के बायस गेटमैन ट्रेन की आमद से एक घंटा पहले फाटक बंद करने लगे। राहगीर रेलवे हुकाम पर बरस पड़े। जमाना बदला, जिद्दत का नया दौर आया, मगर रेलवे के हालात ना बदले। फैसलाबाद स्टेशन के 100 से जायद फाटकों पर अमले जदीद सहूलियात से महरूम। फाटकों पर गेटमैन को फराहम किया गया टेलीफोन और दीगर सामान नाकारा हो गया। नाकारा कम्युनिकेशन सिस्टम के बायस गेटमैन ट्रेन की आमद से 1 घंटा पहले फाटक बंद करने लगे। राहगीर रेलवे हुकाम पर बरस पड़े। मजीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। अवैस, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस मुतालिक बताइएगा। ठीक है, अवैस से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, फैसलाबाद स्टेशन के 100 से जायद फाटकों पर अमला जदीद सहूलियात से महरूम। फाटकों पर गेटमैन को फराहम किया गया टेलीफोन और दीगर सामान नाकारा हो गया। नाकारा कम्युनिकेशन सिस्टम के बायस गेटमैन ट्रेन की आमद से एक घंटा पहले फाटक बंद करने लगे। राहगीर रेलवे हुकाम पर बरस पड़े। अवैस से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। जी अवैस, बताइएगा इससे मुतालिक। आज ही बिल्कुल फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के रीजन भर में 100 से जायद जो फाटक मौजूद हैं, वहाँ पर जो नाकिस जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें पुराने ज़माने के टेलीफोन हैं और इसके साथ साथ जो दीगर मटीरियल है वो तमाम तर नकारा हो चुका है। ट्रेन की जो आमद है उसका अंदाज़ा लगाने के लिए जो है वो गेटमैन को भी यहाँ पर 40-40, 50-50 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है और फाटक जो है वो ट्रेन की आमद से पहले ही 1 घंटा बंद कर दिया जाता है और मुसाफिरों को जो शहरी हैं राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं तारकाबाद फाटक पर मौजूद हूँ, कुछ शहरी हैं, उनसे जानते हैं इस वाले उनका क्या कहना चाहे। आप हमें बताइएगा कि ट्रेन की आमद से 1 घंटा पहले ही फाटक बंद हो जाता है, किन मुश्किलात का सामना है?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो रोड है ना, ये इतना मसरूफ़ है कि ये लारी अड्डे को लिंक करता है, कुछ इलाकों को लिंक करता है जो काफ़ी ज़्यादा आबादी वाले हैं, और कम बेश 1 मिनट में 100-150 मोटरसाइकिल यहाँ से गुजरती है। अब ये जो 15 मिनट 20 मिनट पहले जो फाटक बंद होता है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना रश बढ़ जाता है और जो ट्रैफिक जाम हो जाती है, जिसकी वजह अक्सर औकात आपस में जो कह लें आप भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो लड़ाई झगड़े होते हैं, इधर अक्सर औकात वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसकी वजह यही है कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, फाटक जो है वो भी छोटा है। हाँ जी बिल्कुल, आबादी जो है वो बढ़ चुकी है, फाटकों का साइज़ छोटा है, जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद नहीं है। कुछ और यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि फाटक जो है अब वो बंद हो जाता है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? फाटक तो घंटा पहले बंद हो जाता है। यहाँ दुश्वारी ये होती है कि रश हो जाता है, दूसरी ट्रैफिक एक दूसरे में भी मतलब लग भी जाते हैं, हादसा होते हैं, बस ज़्यादातर आवाम परेशान रहती है। किसी ने काम जाना होता है, किसी ने अस्पताल जाना होता है, इसलिए इस पर नज़रसानी की जाए। अच्छा बिल्कुल, यहाँ पर जो राहगीर मौजूद है उनका यही कहना है कि फाटकों पर जो है वो पहले तो शहर भर में जो फाटक मौजूद है उनका साइज़ जो है वो कम है, जिसकी वजह से जैसे ही ट्रेन गुजरती है, ट्रैफिक खुलती है तो ट्रैफिक अक्सर जैम हो जाती है, और गेटमैन की जानिब से फाटक जो है वो जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम ना होने की वजह से जो है वो एक घंटा पहले बंद कर दिया जाता है, जो कि अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। मलेशिया के हाई कमिश्नर डैडी फैसल अहमद सालेह की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आमद, सनतकारों से मुलाकात की, दोनों ममालिक में तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू की। आपको बताएं, मलेशिया के हाई कमिश्नर डैडी फैसल अहमद सालेह की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद, सनतकारों से मुलाकात की, दोनों ममालिक में तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू की। मलेशिया के हाई कमिश्नर डैडी फैसल अहमद सालेह की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आमद, सनतकारों से मुलाकात की, दोनों ममालिक में तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू की। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं आपको, मलेशिया के हाई कमिश्नर डैडी फैसल अहमद सालेह की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद, सनतकारों से मुलाकात की, जबकि दोनों ममालिक में तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से भी गुफ्तगू की। मलेशिया के हाई कमिश्नर डैडी फैसल अहमद सालेह की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आमद, सनतकारों से मुलाकात की, दोनों ममालिक में तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू की। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में हेपेटाइटिस के मरीजों का इलाज बंद, अस्पतालों को हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत अद्वियात न मिल सकी, जानलेवा मर्ज में मुब्तला मरीज अद्वियात के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद के टीचिंग अस्पताल, जिसमें अलाइड अस्पताल शामिल है, DHQ अस्पताल शामिल है और जनरल अस्पताल गुलामदाबाद शामिल है, यहाँ पे हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला मरीजों को जो है वो अद्वियात नहीं मिल रही, और ऐसे मरीजों का जो है इलाज बंद होने के सबब उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तीनों अस्पतालों में जो है वो अद्वियात हेपेटाइटिस की जो है नायाब हो चुकी हैं, जिसके मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे हेपेटाइटिस अद्वियात? सर, हेपेटाइटिस की दवाई ख़त्म हो चुकी है, किसी हॉस्पिटल में नहीं मिल रही, लिहाजा हमारी अपील है कि हुकूमत हमारा साथ तावन करे और ये दवाई हॉस्पिटलों में मुहैया करे। बाज़ार से बहुत महंगी मिलती है, कैसे लें? गरीब आदमी हैं, क्या करें? किधर जाएं? बच्चों का खाना पूरा करें या दवाइयों के ऊपर पैसे लगाएं? हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि इसको लिहाजा पूरी करें। अस्पतालों में जो है वो अद्वियात जो है पूरी की जाए, क्योंकि हेपेटाइटिस की अद्वियात जो है वो महंगी है और इसके मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं जो कि गरीब मरीज जो है वो बाहर प्राइवेट अस्पतालों से जो मेडिकल स्टोर से नहीं खरीद सकते। ताहम जो सिलसिले में अस्पताल इंतजामिया है, उनका कहना है कि हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जो है वो अद्वियात फराहम होना होती है। हुकूमत के साथ जो है वो राब्ते में है, जैसे ही हुकूमत की जानब से अद्वियात फराहम की जाएंगी तो मरीजों को अद्वियात की फराहमी जो है वो शुरू कर दी जाएगी। जी, हुकूमत अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, पाकिस्तान में तैनात अर्जेंटाइन के सफीर का पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का दौरा, फैसलाबाद की एक्सपोर्ट से मुतल्लिक गुफ्तगू की। I haven't done my homework. No, just a ballpark figure if you have any idea, because that could be a big deterrent if you have higher tariffs or. I think it would be average should be like 12%, something like that. Yes, yes. But I will check it. Double check it. Yes. Yeah. I have a question. Yes. Mr. President, major trade partner of European Union. Do you help Pakistan to maintain its GSP plus status in European Union?
Sorry, I didn't get the last part. South America. South America. We're partner of European Union. No. We are South America. South America. South America. But we have a trade cooperation agreement with Saudi. Yeah, but that's not EU. That's not. Yeah, we are negotiating with EU a free trade agreement. Yes. We haven't finished it yet. I mean, we finished the negotiations, but hasn't been signed yet. Okay, you haven't signed yet. Sorry? But even if they sign, they would not enter into EU. No. Even if they sign, so it's totally separate. Yeah. Okay. What we can do, I mean, we are part of an economic integration process called Mercosur, which comprises Argentina, Brazil, Paraguay, and Uruguay. So as member of this process, we cannot negotiate individually free trade agreements. We have to do it as a bloc. And there was an idea like 10 years ago, and it was actually Pakistan who was interested in negotiating a free trade agreement with Mercosur. And some discussions were held, but this was a long time ago. This is something we can start considering to start renegotiating again. But what we have with the European Union is this negotiation of a free trade agreement. We are not part of EU. Sir, thank you very much. As फैसलाबाद में 11 सुपर स्टोर्स और बेकरियों की सेल्स टैक्स चोरी पकड़ी गई। आइडियल स्वीट्स गुलिस्तान कॉलोनी, आइडियल स्वीट्स सत्याना रोड, डिलाइट स्वीट्स जंग, इल्मदीन क्लॉथ हाउस और सिटी कैश एंड कैरी समेत दीगर की जानिब से 24 मिलियन रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। शहरियों से खरीदारी पर सेल्स टैक्स वसूल किया जाता मगर कौमी खजाने में जमा नहीं करवाया जा रहा था। तहकीकात में चोरी पकड़ी गई। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिए। जी, फैसलाबाद डिवीजन में 11 सुपर स्टोर्स, बेकरियों और रिटेल स्टोर की टैक्स चोरी जो है वो सामने आई है और इस हवाले से 24 मिलियन रुपए की सेल्स टैक्स चोरी फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से इन 11 सुपर स्टोर त्याना रोड, डिलाइट स्वीट्स एंड बेकर्स जंग, इल्मदीन स्वीट्स, इल्मदीन क्लॉथ हाउस और इस तरह मजमूई तौर पर ये 11 सुपर स्टोर्स बनते हैं जिनकी जानिब से शहरियों से तो सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा था मगर कौमी खजाने में ये सेल्स टैक्स जमा नहीं करवाया जा रहा था। शिकायत सामने आने पर FPR की जानिब से इन स्टोर्स पर सेल्स टैक्स का सेक्शन जो 40B है उसका निफाज किया गया और FPR की टीमें इन स्टोर्स पर बिठा दी गई जिन्होंने इनकी सेल्स, परचेज और इनका स्टॉक जो था वो मुकम्मल तौर पर चेक किया और फिर तहकीकात के बाद ये बात सामने आई कि इन अफराद की जानिब से 2 करोड़ 40 लाख रुपए की सेल्स टैक्स चोरी की गई है। शहरियों से तो सेल्स टैक्स वसूल किया जाता रहा मगर कौमी खजाने में जमा नहीं करवाया जा रहा था। FPR हुकाम ने इन तमाम अफराद को जो सेल्स टैक्स चोरी है और उसकी रिकवरी है उसके नोटिस भिजवा दिए हैं और मजमूई तौर पर ये 24 मिलियन रुपए की सेल्स टैक्स चोरी फैसलाबाद रीजनल टैक्स FPR हुकाम ने नोटिस भिजवा दिए हैं। उमैर अजमत, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, जंग में महकमा खेल शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकामी का शिकार। शहर में बने दोनों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना, अमारात की देखभाल न होने से दीवारें भी टूट फूट का शिकार। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में वजारत खेल की जानिब से खेलों को फ़रोग़ देने के लिए मुतअद्दिद प्रोजेक्ट तो शुरू किए गए तमाम पहले से मौजूद प्रोजेक्ट्स की तमीर और मुरम्मत के हवाले से कोई भी इकदाम मुमकिन नहीं हो पाए हैं जिसके बायस जो है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस जो जंग के अंदर 2 मौजूद हैं जिसमें स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो गुजरा रोड पर मौजूद है जबकि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स माहिर भी जो है वो टूट फूट का शिकार है जबकि बुनियादी सहूलियात की कमी के बायस जो है खिलाड़ियों को फसी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा है जबकि शहरियों का भी कहना है कि अहम जो है प्रोजेक्ट्स पर वजारत खेल की जानिब से पैसा न लगाना यकीनी तौर पर जो है वो लम्हा फिक्रिया है। इस वाले से मेरे शहरी मौजूद हुए, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ होती हैं लेकिन यहाँ पे सहूलियात कोई नहीं है, क्या कहेंगे कि मुश्किलात का सामना होता है? जी सर, ये स्पोर्ट तो क्लब तो बना दिए हैं, यहाँ पे ना कोई पानी का इंतज़ाम है ना कोई लाइट का इंतज़ाम है, गटरों के ढक्कन भी नहीं है, तो इनको ग्रांट मिलती है लेकिन ये लगा नहीं सकते। हमारी अपील है तैमूर भट्टी साहब से कि कोई मेहरबानी करे, इन पर देखा जाए, इन पर कोई काम किया जाए, कोई जो ग्रांट है ये वो लगाएं, क्यों नहीं लगाते, मेहरबानी।
तो शहरियों का कहना है कि यकीनी तौर पर ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस जो हैं वो रेवेन्यू भी जनरेट अवैस करते हैं। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जिला फैसलाबाद के सेहत कार्ड का इजरा काबिल सत्ताइश है। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ रिटेल मेडिसिन मियां तनवीर कहते हैं कि शहरियों में इस सहूलत से मुस्तफीद होने के हवाले से आगाही बहुत जरूरी है। इस कार्ड के अहल होने से लेकर इसकी रजिस्ट्रेशन बारे तफसीलात क्या हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे शराज भट्ट से। जी शराज, आगाह कीजिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सेहत कार्ड का बाकायदा तौर पर फैसलाबाद ज़िले के लिए इजरा किया है, लेकिन उसके बाद से अब आम लोगों में पाया जा रहा है कि इस सेहत कार्ड से किस तरीके से मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है, एक शख्स उस सेहत कार्ड के लिए अहल है या नहीं अहल है। इस हवाले से भी कुछ अबहम है, रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी अबहम है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए चेयरमैन मेडिसिन रिटेल मेरे साथ मियां तनवीर साहब मौजूद, उनसे गुफ्तगू करते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। मियां साहब बताइएगा, आप मेडिसिन के हवाले से और हेल्थ सेक्टर के हवाले से एक्सपर्टीज़ आपकी हैं, तो ये बताइएगा लोग शहरी जो हैं इस वक्त वो ये जानना चाह रहे हैं कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन हेल्थ कार्ड के लिए कैसे करवा सकते हैं और क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं है, ये किस तरह पता कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से तो फैसलाबाद में जो हेल्थ कार्ड है वही हॉट टॉपिक चल रहा है। तो जैसा कि आप बात कर रहे थे कि उसके हवाले से कि हमें कैसे पता चलेगा कि आइदर हम एलिजिबल हैं हेल्थ कार्ड के लिए या नहीं, तो मेरे ख्याल में जितने भी फैसलाबाद के डोमिसाइल होल्डर हैं यहाँ का, जिनका परमानेंट एड्रेस फैसलाबाद का है, सारे लोगों को ही एलिजिबल कर दिया गया है। लेकिन फिर भी हम फर्दर वेरिफिकेशन के लिए 8500 पे एक टेक्स्ट मैसेज, अपना आईडी कार्ड नंबर जो टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो फौरी तौर पर हमें वहाँ से उसका रिप्लाई आ जाता है कि हम अपने हेल्थ कार्ड के लिए एलिजिबल हैं और हमारी फैमिली में इतने लोग शामिल हैं। हमारी फैमिली में वही लोग शामिल होंगे जो हमारे एफआरसी में हैं, बल्कि एफआरसी में भी चूँकि पुराने तो हमारे जो बच्चे थे वो भी उसमें शामिल हैं, लेकिन जिन बच्चों की शादियां हो चुकी हैं अब वो हेड ऑफ़ द फैमिली, उनकी एक अलहदा फैमिली है, उनका एक अलहदा हेल्थ कार्ड का अकाउंट होगा जो हम जी उनका एक फैमिली ट्री अलहदा से होगा, उनका जो 10 लाख रुपए का कार्ड है वो अलहदा से होगा, और जो बड़े हैं जैसे मैं हेड ऑफ़ द फैमिली हूँ तो मेरा और मेरी मिसेस का उसमें सिर्फ हम 2 मेंबर काउंट होंगे, वो हम दोनों के लिए जो 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड है वो अलहदा से होगा। अच्छा चलें, ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन के हवाले से। अब ये बताएगा कि ये तो पता लग गया कि अहल हैं या नहीं है, ये किस तरह से पता किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जा सकती है अपनी, और आप इसकी फैसिलिटी से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? उसमें एक तो pmhealthprogram.government.pk वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उस पर आप जाके उस पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। सेकेंडली, लोगों की हेल्प के लिए हमारे तकरीबन जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जो 37 हॉस्पिटल्स फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में हैं और फैसलाबाद डिवीज़न में 90 के करीब जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको इस हेल्थ प्रोग्राम के साथ जो अटैच किया रजिस्टर किया गया है, वहाँ पे इनके रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद हैं, इनका एक हेल्थ कार्ड का एक अलहदा काउंटर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में महकमा इन्हार की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस निकली। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान ने वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी महकमा इन्हार को चीफ इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिख दिया और डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में तलब कर लिया गया। आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में महकमा इन्हार की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस निकली। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान ने वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इन्हार को चीफ इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिख दी और डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में तलब कर लिया गया। फैसलाबाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियां मुकम्मल, दफातर में आवेजा कर दी गई। शहरी शिकायत का इंदराज करवा सकेंगे, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर अथॉरिटी मुकर्रर। फैसलाबाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियां मुकम्मल, दफातर में आवेजा कर दी गई, शहरी शिकायत का इंदराज करवा सकेंगे।